مجھے پچھلے ہفتے چند دن نیو یارک میں گزارنے کا موقع ملا۔ میری مصروفیت مین ہٹن کے 5ویں ایونیو کی 14ویں اسٹریٹ پر تھی۔ صبح سے شام تک زیادہ تر وقت وہاں گزرتا تھا۔ مین ہٹن کے ہوٹل ناقابل یقین حد تک مہنگے ہیں۔ نارمل ہوٹل میں بھی $400-500 میں کمرہ ملتا ہے۔ نیو جرسی نیو یارک کی قریب ترین اسٹیٹ ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ہڈسن دریا بہتا ہے۔ آپ ٹرین، ٹیکسی، بس یا فیری کے ذریعے دریا عبور کریں اور نیو جرسی میں داخل ہو جائیں۔ وہاں صورتحال قدرے بہتر ہے۔ شاید اس کی وجہ ٹیکس ہے۔ نیو جرسی میں ٹیکس کم اور نیو یارک میں زیادہ ہیں، لہٰذا آپ کو وہاں مناسب ہوٹل مل جاتے ہیں۔ مجھے شکور عالم کی وجہ سے جرسی سٹی کے علاقے نیو پورٹ میں ہوٹل مل گیا۔ شکور عالم 86 سال کے نوجوان ہیں۔ پچھلے 20 سال سے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ PIA میں ہوتے تھے، امریکہ میں پوسٹ ہوئے، نیو یارک میں ریٹائر ہوئے اور پھر امریکہ میں ہی ٹک گئے۔ یہ آج کل الخدمت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کے نام سے پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ میرا ان سے پہلا رابطہ 2017 میں ہوا تھا اور پھر ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ شکور صاحب ایک پازیٹیو اور پریکٹیکل انسان ہیں، دوسرے کو سپیس دیتے ہیں اور اس کے زیادہ سے زیادہ آرام کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ نیو پورٹ میں ہوٹل ان کا آئیڈیا تھا۔ ہوٹل کے بالکل سامنے پاس ٹرین اسٹیشن تھا۔ میں اسٹریٹ 33 کی ٹرین پر سوار ہوتا تھا اور 7 منٹ میں اسٹریٹ 14 پر پہنچ جاتا تھا۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو نیو یارک اسٹیٹ اور سٹی کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ نیو یارک اسٹیٹ امریکہ کی چوتھی بڑی ریاست ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,41,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کینیڈا کی سرحد تک جاتی ہے۔ نیاگرا فال کا امریکی حصہ بھی نیو یارک ریاست میں آتا ہے۔ شہر 5 حصوں میں تقسیم ہے اور یہ تمام حصے 300 کلومیٹر پر محیط ہیں۔ مین ہٹن نیو یارک اور امریکہ کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ یہ جزیرہ ہے اور اس جزیرے پر سینکڑوں فلک بوس عمارتیں ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر کھرب پتی مین ہٹن میں رہتے ہیں یا پھر ان کے ہیڈ کوارٹرز یہاں ہیں۔ شہر کا یہ حصہ ایونیو اور اسٹریٹس میں تقسیم ہے۔ اس بندوبست کو گرڈ کہا جاتا ہے۔ مین ہٹن شمال سے جنوب 12 جبکہ مشرق سے مغرب 155 حصوں، بعض جگہ پر 214 میں تقسیم ہے۔ شمال سے جنوب چلنے والی سڑکیں ایونیو کہلاتی ہیں اور یہ تعداد میں 12 ہیں، جبکہ مشرق سے مغرب گلیاں اسٹریٹس ہیں اور یہ 155 سے لے کر 214 تک ہیں۔ یہ انتظام اس قدر آسان اور خوبصورت ہے کہ ہر گلی ہر ایونیو سے ہو کر گزرتی ہے۔ یعنی اگر آپ 14ویں اسٹریٹ پر ہیں تو یہ گلی 1 سے لے کر 12ویں ایونیو تک جائے گی۔ اسی طرح ہر ایونیو بھی تمام گلیوں سے گزرے گا، لہٰذا آپ اگر کسی ایونیو پر چلنا شروع کر دیں تو یہ 214 گلیوں کو چھو کر گزرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی گلی میں واک شروع کر دیں تو یہ تمام ایونیوز کو کراس کرے گی۔ نیو یارک نمبرز میں اوپر جانے والے ایونیوز اور گلیوں کو اپ اور کم ہونے والوں کو ڈاؤن کہتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر 3 نمبر ایونیو سے 4، 5 یا 6 کی طرف جائیں گے تو یہ اپ ہوگا اور اگر آپ 12 سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ ڈاؤن سمجھا جائے گا۔ گلیوں کی صورتحال بھی یہی ہے۔ اگر گلیوں کا نمبر بڑھ رہا ہے تو یہ اپ ہوگا اور اگر نمبر کم ہو رہے ہیں تو یہ ڈاؤن ہوگا۔ اس سسٹم کی وجہ سے آپ مین ہٹن کے کسی بھی اسٹیشن، عمارت یا ایڈریس پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ مین ہٹن کی طویل ترین گلی براڈ وے کہلاتی ہے۔ یہ 33 کلومیٹر لمبی ہے اور امریکہ کے تمام پرانے، بڑے اور مہنگے تھیٹر، سینما ہالز اور شوز اسی سڑک پر ہوتے ہیں۔ دنیا کا مشہور ترین چوک ٹائم اسکوائر بھی اسی سڑک پر ہے۔ پورا مین ہٹن زیر زمین ٹرین سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ اس سسٹم کو پاتھ ریل نیٹ ورک نیو جرسی سے جوڑتا ہے۔ آپ کو ہر جگہ پاتھ اسٹیشن مل جاتے ہیں، یعنی آپ مین ہٹن کے کسی بھی علاقے سے نیو جرسی جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں زیر زمین ریلوے سب وے کہلاتا ہے۔ 34ویں اسٹریٹ پر ریلوے کا مرکزی اسٹیشن ہے، یہ پین اسٹیشن کہلاتا ہے۔ یہاں سے پورے امریکہ کے لیے ٹرینیں ملتی ہیں۔ یہ اسٹیشن پورا شہر ہے۔ ایک منٹ میں یہاں سے 20 ٹرینیں نکلتی ہیں۔ میں ٹائم اسکوائر پہنچنے کے لیے نیو پورٹ سے 33 اسٹریٹ کی ٹرین لیتا تھا، 33ویں اسٹریٹ پر اترتا تھا اور 42ویں اسٹریٹ کی طرف چلنا شروع کر دیتا تھا۔ 42ویں اسٹریٹ سے ٹائم اسکوائر شروع ہو جاتا ہے اور یہ 45ویں اسٹریٹ تک جاتا ہے۔ یہاں دن رات رونق اور ہنگامہ رہتا ہے۔ نیو یارک آنے والا ہر سیاح ٹائم اسکوائر اور براڈ وے ضرور جاتا ہے۔ شہر کا یہ علاقہ 24 گھنٹے آباد رہتا ہے۔ براڈ وے کے تھیٹرز یہیں ہیں اور بلند عمارتوں پر بڑی بڑی اسکرینیں بھی یہیں لگی ہیں۔ ٹائم اسکوائر میں 2 میوزیم ضرور دیکھنے چاہیے۔ پہلا میوزیم رائز اینڈ وائی اور دوسرا میوزیم آف براڈ وے ہے۔ زائرین وائی میں نیو یارک کی ڈیولپمنٹ کی ہسٹری ہے۔ اس کا آخری حصہ حیران کن ہے۔ سیاحوں کو ایک ٹرالی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر پورے شہر کا 4D نظارہ کرایا جاتا ہے۔
यूँ महसूस होता है कि आप छतरी में बैठकर न्यूयॉर्क की फ़िज़ा में झूल रहे हैं। ये हिस्सा इस कदर परफेक्ट है कि पानी के करीब से गुजरते हुए आपके मुंह पर छींटे पड़ते हैं, बर्फ़बारी में आपको बाकायदा ठंड लगती है और फायरवर्क्स के दौरान आप अपने कपड़ों को आग से बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा म्यूज़ियम ब्रॉडवे की तारीख से मुतल्लिक है। न्यूयॉर्क में पहला थिएटर 1750 में शुरू हुआ था। म्यूज़ियम में इससे लेकर जदीद तरीन थिएटर्स की तारीख दिखाई जाती है। आपको यहाँ कामयाब तरीन ड्रामों के मुख्तलिफ किरदारों के कॉस्ट्यूम भी मिलते हैं और पहले बल्ब से लेकर कैमरे तक का सफ़र भी। आप यकीनन जानते होंगे कि बिजली, बल्ब, माइक, कैमरे, रेडियो, सिनेमा और टीवी ने न्यूयॉर्क में जन्म लिया था, लिहाजा आपको इन सब की तारीख म्यूज़ियम ऑफ ब्रॉडवे में मिलती है। मैंने पूरा दिन राइज एंड वाई और म्यूज़ियम ऑफ ब्रॉडवे में गुजारा। अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खरबपति मैनहट्टन की 57 स्ट्रीट में रहते हैं। ये स्ट्रीट सेंट्रल पार्क के साथ है, चुनांचे इसकी ज़्यादातर अपार्टमेंट्स की इमारतें सेंट्रल पार्क की तरफ खुलती हैं। स्ट्रीट 57 की तमाम इमारतें इंतहाई महंगी हैं। यहाँ 10 से लेकर $50 मिलियन तक के फ्लैट्स हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ वॉक करते हैं। आपको सेंट्रल पार्क में भी प्राइवेट सिक्योरिटी के दरमियान भागते हुए लोग नज़र आ जाते हैं। हॉलीवुड के एक्टर्स भी यहाँ रहते हैं। मैं 2017 में आखिरी मरतबा न्यूयॉर्क आया था तो मैनहट्टन में हलाल फूड तलाश करना पड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। कारपोरेशन ने फूड कार्ट्स की इजाज़त दे दी है, लिहाजा आपको हर स्ट्रीट पर दर्जनों फूड कार्ट्स मिल जाती हैं और अक्सर के ऊपर हलाल लिखा होता है। कार्ट्स के मालकान भी अमूमन मुसलमान होते हैं। ये मिस्री, शामी, इराकी और तुर्क हैं। आप इनसे बर्गर भी ख़रीद सकते हैं, हॉट डॉग भी और चावल कबाब भी। मुसाफिर अमूमन $10 से $12 में एक वक्त का खाना खा सकता है। इससे सयाहों, बिलखुसूस मुसलमान सयाहों को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा ज़्यादातर वक्त 5वीं एवेन्यू और 14वीं स्ट्रीट पर गुजरता था। यहाँ फूड कार्ट्स ज़्यादा थी, इसकी वजह स्टूडेंट्स और यूनियन स्क्वायर है। 5वीं एवेन्यू और 14 नंबर गली में दर्जन भर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, कॉलेज और स्कूल्स हैं और इनमें पूरी दुनिया के तालिब इल्म पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का कैंपस भी करीब है। दूसरा, यूनियन स्क्वायर में हर वक्त कोई ना कोई एहतजाज चलता रहता है, लिहाजा यहाँ हजूम रहता है और इस हजूम की वजह से फूड कार्ट्स का कारोबार चलता रहता है। ताहम मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये कारोबार क्योंकि मुसलमान भाइयों के हाथ में है, चुनाचे ये दाव लगाते देर नहीं लगाते। आप अगर इनसे रेट नहीं पूछेंगे या बकाया लेते हुए नोट नहीं गिनेंगे तो फिर आपके साथ हेरा फेरी ज़रूर होगी, लिहाजा एहतियात करें। यूनियन स्क्वायर 14वीं स्ट्रीट और 5वीं और 4थे एवेन्यू के दरमियान है। इस पर हर वक्त कोई ना कोई मुजाहरा होता रहता है। मैंने यहाँ रोज़ाना गज़ा की हमायत में मुजाहरे देखे। मुझे यहाँ बांग्लादेश के हिंदू भी मुजाहरे करते हुए मिले। ये बंगाली ज़बान में बांग्लादेशी मुसलमानों से हिंदुओं को बचाएं के नारे लगा रहे थे। मैं बड़ी देर इनके साथ खड़ा रहा और इनसे पूछता रहा, तुम लोग 1970 में मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों से पनाह मांग रहे थे और आज अपने बंगाली भाइयों से बचते फिर रहे हो, तुम भी कितने अजीब लोग हो। और उनके पास कोई जवाब नहीं था। यूनियन स्क्वायर में शाम के वक्त मुख्तलिफ बैंड्स भी आ जाते हैं। ये म्यूज़िक बजाते हैं और लोग उनकी मौसीकी और रक्स को एंजॉय करते हैं। यूनियन स्क्वायर में शतरंज के खिलाड़ी भी आम हैं। ये मेज़ पर शतरंज सजाकर सियाहों को बाजी की दावत देते हैं। अगर सियाह हार जाए तो उसे $10-20 देना पड़ते हैं और अगर खिलाड़ी हार जाए तो ये मुस्कुराकर मुंह दाएं बाएं कर लेता है। बर्ट्रैंड रसल हमारी नस्ल का उस्ताद था। हम लोगों ने बचपन में उसका एक आर्टिकल पढ़ा था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसमें रसल ने बताया था कि इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ से खुशी मिलती है और वो है काम। आप जितना काम करते जाएंगे आपका दिल खुशी से उतना ही लबरेज होता जाएगा। उसका कहना था, वक्त की ज़िया और सुस्ती से उदासी जन्म लेती है और ये इंसान को तबाह कर देती है। मैंने ये बात पल्ले बांध ली और अंधाधुंध काम शुरू कर दिया। काम की इस ज़्यादती ने मेरा DNA बदल दिया और मैं अब काम के बगैर नहीं रह सकता। आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं बीमार भी सिर्फ छुट्टी के दिन होता हूँ। काम के दिनों में सिर्फ और सिर्फ काम होता है। इसका फ़ायदा भी हुआ। अल्लाह ताला ने मोहताजी और तंगी से बचा लिया, ख्वाहिशात की तकमील के लिए वसाइल फराहम कर दिए और दूसरों की मदद की अहलियत भी बख्शी। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ और वो ये कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया हूँ। मुझसे अब फजूल गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं होती। जहाँ भी बात की मक्खी बात पर बिठाने की कोशिश देखता हूँ वहाँ से गायब हो जाता हूँ या फिर चुपचाप सुनता रहता हूँ और इससे जाहिर है दूसरों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ताहम न्यूयॉर्क में मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी एक जगह टिक कर 9 दिन रहा। एक ही होटल, एक ही कमरे में 9 दिन गुजारे। सुबह उठता था, नाश्ता करता था और नहा धोकर स्ट्रीट 14 चला जाता था।
वहाँ किसी फूड कार्ट या रेस्टोरेंट से लंच करता था, 10 एवेन्यू से 1 एवेन्यू तक जाता था, किसी न किसी सायादार जगह पर बैठकर कॉफ़ी पीता था और शाम को होटल वापस आ जाता था। खाना तलाश करता था, दरिया हडसन के किनारे वॉक करता था, दरिया की दूसरी जानब मैनहट्टन की इमारतों की रोशनी देखता था और वापस आकर सो जाता था। मैं इस वसी हड हरामी से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, काम करने का भी मज़ा है, लेकिन जो मज़ा हरामखोरी में है उसका कोई जवाब नहीं। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, आप बिजनेस क्लास, अच्छा होटल और अच्छे रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकते हो और आप न्यूयॉर्क जैसे शहर में किसी भी जानब निकल सकते हो और थिएटर्स और म्यूजियम एंजॉय कर सकते हो। आपको अल्लाह से और क्या चाहिए। चुनाचे आप यकीन करें, मैंने जी भरकर हरामखोरी एंजॉय की। इस दौरान 2-3 मरतबा शकूर आलम साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। शकूर आलम न्यूयॉर्क से 2 घंटे की ड्राइव पर न्यू जर्सी के एक पुरसकून टाउन में रहते हैं। उनके इर्द गिर्द आलू बुखारे, खुबानी, सेब और आड़ू के एकड़ों पर फैले बागात हैं। शकूर साहब अपनी बेगम के साथ इन बागों में रहते हैं। बच्चे शादीशुदा हैं, अपने अपने काम करते हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं। एक बेटा इनके साथ रहता है, लेकिन वो भी अक्सर दौरे पर होता है। चुनाचे शकूर साहब अपनी बेगम के हाथों के पके खाने खाते हैं और उनकी तारीफ करके दिन गुजार देते हैं। ये 86 साल की उम्र में मुझे कंपनी देने के लिए न्यूयॉर्क आ जाते थे और मैं उनके साथ यूनियन स्क्वायर में बैठकर उनकी ज़िंदगी के सबक सुनता रहता था। इस दौरान 2 और पाकिस्तानी ख़ानदानों से भी मुलाकात हुई। सैयद वसीम मेहदी गुजरात के रहने वाले हैं, रेडियो पाकिस्तान में इंजीनियर थे। 1990 की दहाई में अमेरिका आए और बड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया। ये न्यू जर्सी के टाउन ओशन में रहते हैं। इनका घर बहुत खूबसूरत मुकाम पर है। पूरे इलाके में हिरन फिरते रहते हैं। इनके बच्चे भी अपने अपने काम कर रहे हैं और वाशिंगटन में रहते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी भी अकेले हैं। मेहदी साहब हमारे साथ सफ़र करते रहते हैं। ये मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। मुझे एक रात इनके साथ रहने का मौका मिला। दोनों मियाँ बीवी ने जी जान से खिदमत की। मेहदी साहब कुदरती बिजनेसमैन हैं, दुनिया के धक्के भी खा चुके हैं। चुनाचे मैंने उनकी कंपनी बहुत एंजॉय की। उन्होंने मुझे पूरा इलाका दिखाया। हम न्यू जर्सी के एडवेंचर पार्क भी गए। अमेरिका में 6 बड़े एडवेंचर पार्क्स हैं। ये 6 फ्लैग्स कहलाते हैं। इनमें से एक न्यू जर्सी में है। उसके 3 हिस्से हैं, वाटर पार्क, सफारी और राइड्स। वाटर पार्क के लिए हमारे पास कच्छे नहीं थे। दूसरा, हम दोनों फितरतन पानी के जानवर नहीं हैं, लिहाजा हम वहाँ नहीं गए। मैं ज़िंदगी में बेशुमार राइड्स भी भुगता चुका हूँ। पीछे रह गया सफारी पार्क, हमने उसे खूब एंजॉय किया। पार्क की इंतज़ामिया सफारी के लिए लोगों को ट्रकों में बिठाकर जंगल में ले जाती है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर खुले फिर रहे होते हैं। वहाँ हर किस्म की भैंसें भी मौजूद थीं। उन्हें देखकर जी खुश हो गया। वाकई भैंस और गुजरों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद है। मेरी तीसरे मुलाकाती एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी फैमिली थी। नवीद सनी मुझे अक्सर मैसेज करते रहते थे। ये भी अपनी बेगम के साथ न्यू जर्सी में रहते हैं। मैंने उन्हें भी स्ट्रीट 14 बुला लिया। ये अपनी बेगम मूना के साथ तशरीफ़ लाए। दोनों बहुत शानदार हैं। नवीद साहब लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी मुश्किल से यूरोप पहुँचे, स्पेन में काम करते रहे और वहाँ से अमेरिका आ गए। ये ख़ानदान के वाहिद कफ़ील थे। ये अपने बहन भाइयों को अमेरिका लेकर आए, उनकी शादियाँ की और उन्हें अपने अपने घरों में आबाद किया। उनकी बेगम ने भी अपने ख़ानदान के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। ये लोग जिम्मेदारियों की वजह से बच्चे की नेमत से भी महरूम रहे, लेकिन ये अब बड़ी जद्दोजहद के बाद अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। नवीद साहब इंश्योरेंस में काम करते हैं, जबकि उनकी बेगम ब्यूटिशियन हैं। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं। मुझे इनके साथ डिनर का मौका भी मिला और इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सुनने का भी। ये मुझे जैक्सन हाइट्स के इलाके में भी लेकर गए। ये न्यूयॉर्क का राजा बाज़ार है। पूरे इलाके में देसी आबाद हैं। हर तरफ बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन दिखाई देते हैं। चुनाचे वहाँ देसी किस्म की हड़बूम, अफरा तफरी और बदनज़मी थी। वहाँ कुल्फ़ी भी बिक रही थी और पान भी, और फुटपाथ पर रेडियाँ भी थीं। दर्जनों की तादाद में देसी ग्रोसरी के स्टोर और रेस्टोरेंट थे। जैक्सन हाइट्स में ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें देखकर फ़ौरन ख्याल आता है कि तुम लोगों को अमेरिका में घुसने किसने दिया था। इनमें ऐसे लोग भी थे जिन्हें अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा नहीं आता था और उन्होंने ज़िंदगी में कभी पतलून नहीं पहनी थी। ये अमेरिका आए और इसके बाद कभी जैक्सन हाइट्स से बाहर नहीं निकले। मुझे इसी किस्म का दूसरा इलाका एडिसन में देखने का इत्तेफाक हुआ। एडिसन न्यू जर्सी का दरमियाने साइज़ का टाउन है। ये मशहूर साइंसदान और बिजनेसमैन एडिसन से मंसूब है। वो इसी टाउन में रहता था। उसकी लेबॉर्ट्री और घर भी वहीं थे। मुझे 2017 में उसकी लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी और घर देखने का इत्तेफाक हुआ था। आजकल एडिसन टाउन देसी लोगों की यलगार का शिकार है। चुनाचे आपको यहाँ इंडियन भी मिलते हैं, सिख भी, पाकिस्तानी भी, बंगाली भी और श्रीलंकन भी। शहर में दुपट्टे, शलवारें, दाढ़ियाँ और नंगे टखने आम हैं।
تاہم یہ لوگ جیکسن ہائٹ سے بہتر ہیں۔ اس کی وجہ تعلیم ہے۔ یہاں نسبتاً پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ گروسری سٹورز پر پاکستان اور انڈیا کی ہر پروڈکٹ مل جاتی ہے۔ صرف گڑ 14 قسم کا تھا، بھنڈی اور 10 قسم کے کدو بھی تھے۔ بٹ کڑاہی جیسے دیسی ریستورانوں کی بھرمار بھی تھی۔ مجھے پتا چلا دیسی آبادی کی وجہ سے گورے شہر سے فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کو شہر میں کوئی گورا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر ہو بھی تو اس کا تعلق مشرقی یورپ سے ہوگا، اور وہ بھی دیسی آبادی کی طرح پناہ گزین ہوگا۔ ریستورانوں اور دکانوں کے عملے کی انگریزی 1.5-2 فکروں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے بعد پنجابی میں پوچھتے ہیں، پاجی تو سانو کی چاہیے ہے۔ میں 2017 میں امریکہ آیا تھا تو یہ اس وقت بہت غریب پرور ملک ہوتا تھا۔ مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یورپ اور برطانیہ کے مقابلے میں ہر چیز سستی تھی۔ گروسری، کھانا، ایئر ٹکٹس، ہوٹل اور ریستوران بھی یورپ کے مقابلے میں سستے تھے۔ لیکن 2024 میں امریکہ میں ہر چیز مہنگی اور مشکل ہو چکی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے تک آپ کو ایئرپورٹ پر ٹرالی $1 میں ملتی تھی، جبکہ اس بار سامان کے لیے ٹرالی بھی $6 میں ملی۔ ٹرینوں اور بسوں کے کرائے بھی بڑھ چکے ہیں، اور کھانا اور کپڑے بھی مہنگے ہیں۔ اس کی وجہ ریسیپشن ہے۔ پراپرٹی بہت مہنگی ہے۔ وہ گھر جو 2 سال پہلے تک $1.5-2 لاکھ میں ملتا تھا، اب اس کی قیمت $6-7 لاکھ ہو چکی ہے۔ مکانوں اور دکانوں کے کرائے بھی بہت زیادہ ہیں۔ نیو یارک کے ٹیکس بھی بڑھ چکے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ امریکیوں کے چہروں پر فکر اور تشویش دیکھی۔ پارکنگ کے ریٹس بھی بڑھ چکے ہیں۔ بے روزگاری میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رہی سہی کسر ڈونلڈ ٹرمپ پوری کر رہا ہے۔ اس نے معاشرے کو مزید تقسیم کر دیا ہے، گورے اور کلرڈ۔ یہ گوروں کا لیڈر بن چکا ہے، اور اس کی ہر تقریر میں دوسری قومیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جوں الیکشن قریب ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں ٹینشن اور انگزائٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں اور پناہ گزینوں کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ صدر بن گیا تو پھر امریکہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا۔ امریکی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ تقریباً عمران خان کا بھائی ہے۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کا توازن بگاڑ دیا، بالکل اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امریکہ کو غیر متوازن کر دیا۔ یہاں بھی اب حقیقی آزادی کی دوڑ لگ چکی ہے، اور امریکہ میں جب تک مسلمان اور بھوری اور کالی نسلیں موجود ہیں، اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ کی حقیقی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور ٹرمپ اس بار صدر بن کر امریکہ کو حقیقی آزادی دلا کر رہیں گے، اور اس کے بعد مسلمان اور پاکستانی واپس آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔